Yes, my dear, have a very good day to all of you. Thank you very much. You are most welcome here in the class. Now, this is the second part of my video, and I am going to teach you Harville second chapter. This is We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together by Golden Gordon Cook and Ellen East. Gordon Cook and Ellen East. As in my previous video, I told you that this was a sea voyage, sea journey, and in this sea journey, you have noticed about the hardship and difficulties whatever the protagonist has faced. And here we see that how they have started their journey, from where they have, as I told you, that they have hired, mostly the protagonist has hired two crewmen, that is the staff, नाविक जिसको कहते हैं, the one that is from Switzerland and another that belongs to America. Now he was Larry Weasel, American, and Herb Sigler was a Switzerland, from Swiss. Therefore we see that these two, and the name of the ship, Wave Walker, as the protagonist has repaired it and made a practice of it to face the waves of the ocean, whether it should not be damaged into the storm, into the roughest moment of the sea. Generally we see that the storm occur into the sea, and it creates tremendous disaster, as you have recently seen. The storm hit the coastal area of Andhra Pradesh and Orissa, Bengal, and also you have seen the coastal area of Gujarat that has been suffered a lot because of the storm. And in the previous days, as the crewmen, as the voyagers now were making tour, they, at that very moment, it was not very much facility as we have been facing nowadays. Now let us come back over the chapter that I am going through the book. Here you see that in July in 1976, my wife Mary, son Jonathan 6, daughter Suzanne 7, and I set sail from Plymouth, England, to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook. Now he says that he was making a duplicate journey. That was a duplicate journey, मीन्स उसकी नकल में, हाँ, जेम्स कुक, जो कैप्टन जेम्स कुक थे, वो 200 साल पहले, इस जब ये स्टोरी लिखी गई, या फिर इन्होंने जब 1976 में जब ये इन्होंने अपना एक्सपेडिशन शुरू किया, अपनी यात्रा शुरू की, तो उस वक्त जेम्स कुक के द्वारा जो वर्ल्ड का सी वॉयस किया गया था, वो लगभग 200 साल पहले की घटना थी. तो इन्होंने कहा कि हम अब उस 200 साल पहले की घटना को एक अपने घटना से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं. हम खुद एक एक्सपीडिशन पे जा रहे हैं, एक सी वॉयस में जा रहे हैं. इन जुलाई 1976, तो डेट क्या था? जुलाई 1976. कौन कौन से लोग थे? हिज वाइफ, द वाइफ ऑफ प्रोटैगोनिस्ट की औरत थी, साथ में उसका सन जोनाथन जो 6 इयर्स का था, एंड his daughter Suzanne was of 7 years old. Now they started their sail. Sail means voyage, समुद्री यात्रा शुरू की, अपनी यात्रा शुरू की. सेल का मतलब खेने से होता है. Now here, for the longest time Mary and I, for the longest time Mary मतलब मेरी औरत, मेरी उसका नाम था, मेरी, एंड मैं, a 37-year-old businessman, who he was, the protagonist was a businessman, had dreamed of sailing in the wake of the famous explorer, explorer, one who has explored, now visited or invented, one who has visited or invented, explored, खोज निकाला था, and
for the past 16 years we had spent all our leisure लेसर का मतलब है कि रेस्टिंग टाइम है, लेसर का मतलब रेस्टिंग टाइम, हनोइंग और सी फेयरिंग स्किल, हनोइंग और सी फेयरिंग स्किल, हनोइंग और सी फेयरिंग स्किल. Here hanoing, you have to note it down please. Hanoing, ing, hanoing or sea faring स्किल. ये सी फेयरिंग स्किल होता है, हनोइंग और सी फेयरिंग स्किल. तो हनोइंग और सी फेयरिंग स्किल में क्या आया कि इन्होंने अपने ज्ञान को बढ़ाया. कैसा ज्ञान बढ़ाया? नाउ इम्प्रूव्ड हिज स्किल ऑफ सी वॉयज, इम्प्रूव्ड हिज स्किल ऑफ सी वॉयज, समुद्री यात्रा के ज्ञान को बढ़ाए, समुद्री यात्रा के ज्ञान को बढ़ाए. क्या? वो प्रैक्टिस किए 16 साल. 16 ईयर्स वी हैड स्पेंट ऑल आवर लीजर, हम अपने सारे फुर्सतों को, सारे रेस्टिंग को ख़त्म कर दिए. क्या करने के लिए? नाउ दे वर कंटिन्यूसली प्रैक्टिस फॉर 16 ईयर्स about seafaring skill to develop to enhance the knowledge of sea voyage, समुद्री यात्रा के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए या फिर उसको और बेहतर बनाने के लिए इन्होंने ऐसा किया. कहाँ किया? इन ब्रिटिश वाटर्स. ब्रिटिश वाटर्स माने ब्रिटिश चैनल में या इंग्लैंड के किसी साइड के समुद्र में इन्होंने अपनी यात्राओं का वो प्रैक्टिस किया. यस, प्रैक्टिस द लॉट. देखिए, किसी काम को करने के पहले यू हैव टू मेक अ प्लानिंग, और जब तक आप प्लानिंग नहीं बना सकते हैं तब तक आप उस काम को सही ढंग से नहीं कर सकते हैं. तो प्लानिंग का होना ज़रूरी है. इसलिए ये प्रोटैगोनिस्ट अपने वाइफ के साथ उस तरह की प्लानिंग को बना रहा है, और उस प्लानिंग में इसने 16 साल का समय बिताया और अपने सारे रेस्ट को इन्होंने ख़त्म किया. यानी कि बिजनेस तो करता था, ही वॉज अ बिजनेसमैन, ही हैज़ नेवर स्टॉप्ड हिज business, but in the resting time he has been practicing. अब 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटा, 5 घंटा, 3 घंटा, जो भी ये प्रैक्टिस करता रहा हो, दिस हैज़ नॉट बीन मैंशनड हियर, यहाँ तो उसका मेंशन नहीं किया गया, लेकिन ही हैज़ प्रैक्टिस्ड अबाउट इट, और उसने इस तरह का काम किया. आर बोट वेव वॉकर, द नेम ऑफ द बोट इज वेव वॉकर, वेव वॉकर. नेम ऑफ द शिप, नेम ऑफ द बोट या शिप, ये नेम है. वेव वॉकर इस शिप का नाम है, जिस शिप के माध्यम से ये अपने यात्रा को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं. 23, how was it? 23 meter, 23 meter, METRE, 23 मीटर क्या था? 23 मीटर लंबा था. 30 टन वुडन होल्ड, दैट इज मेड ऑफ वुड, लकड़ी के बना हुआ था, और इतना था कि 30 टन है. वुडन होल्ड ब्यूटी, मतलब इसको नक्काशी भी किया गया था और सुंदर भी लग रहा था. दैट वाज हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ड मीन्स डिजाइंड ऑन बिहाफ ऑफ द सी, सीइंग द कंडीशन, उसके योग्य बनाया गया दैट द वेव्स ऑफ द सी शुड नॉट डैमेज द शिप, दैट इज द प्रोफेशनली डिजाइंड. And we had spent months fighting it out and testing it in the roughest weather we could find. Not only they have practiced of their skill, but also they mended, they repaired the wave walker, and for months they have sailed
the ship to the stormy weather, to the roughest sea, इसके योग्य बनाए, उसको प्रैक्टिस किए, इतना उसमें रिपेयरिंग किए कि वो डैमेज ना हो, ऐसा सोच करके। तो उन्होंने क्या किया, अब यात्रा ये शुरू कर रहे हैं। द फर्स्ट लेग आफ्टर प्लान्ड 3 years, फर्स्ट लेग यानी कि एक टूर में इनकी यात्रा कितनी थी कि 1,500 किलोमीटर। एक बार की पूरी जर्नी में इनको कितना टाइम लगा, 1,05,000 किलोमीटर। जर्नी पास्ड प्लेजेंटली एज वी सेल्ड डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन। अफ्रीका से केप टाउन जाते समय इन्होंने कितना दूरी तय किया, कवर किया, 1,05,000 किलोमीटर। 1,05,000 किलोमीटर डिस्टेंस ही हैज़ कवर्ड इन द फर्स्ट लेग, यानी कि बहुत लंबी यात्रा थी इनकी। तो 1,05,000 किलोमीटर की यात्रा इन्होंने कवर किया है फर्स्ट लेग में, तो 3 years का था। जर्नी पास्ड प्लेजेंटली एज वी सेल्ड डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन, केप टाउन तक पहुंचने में। नाउ देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट, और उससे और ज़्यादा पूर्व जाने के लिए इन्होंने क्या किया, हेडिंग, मूविंग अहेड, गोइंग अहेड, हेडिंग ईस्ट, वी टुक ऑन 2 crewmen। अब आगे बढ़ने के लिए इन्होंने क्या किया, ही हैज़ हायर्ड मतलब किराए पर लिया, जैसे हम टैक्सी ले लेते हैं किराए पर, सब कुछ ले लेते हैं किराए पर। तो हायर्ड अ क्रूमैन, अमेरिकन लैरी विजिल एंड स्विस हब सिगलर। नाउ ही हैज़ जस्ट टेकन hired 2 people as a crewman staff. Why has he hired 2 skilled person? In order to help us tackle one of the world's roughest sea, the southern Indian Ocean. In order to go in the southern Indian Ocean, he has just practiced about it, and he has hired in order to help him. तो आगे चलते हैं। ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन, अब केप टाउन से आगे जा रहे हैं। आउट ऑफ केप टाउन वी बिगेन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल। एनकाउंटर, फेस, एनकाउंटर का मतलब क्या है, फेस। वी एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल, गेल दैट इज द स्टार्म। गेल क्या है, स्टार्म। Strong gale, storm, gale that is the storm. This is the name of the high speed air of that place, that particular area. For the next few weeks it has been continually rushing. For few weeks they blew continuously, gales did not worry me and it was not the a region of worriness, यह परेशानी का कारण कुछ नहीं बना कि that was the air was blowing continuously over the sea surface. Now gales did not worry me, but the size of the waves were alarming, surprising him. But the waves that has been rousing because of the gale, वो जो समुद्री हवा चल रही थी, तेज़ हवा चल रही थी, उसके माध्यम से जो समुद्र में वेव्स पैदा होते थे, जैसे मैंने कहा कि द एयर मूव्स without any hindrance over the surface of the water, freely over the surface of the water the wind moves, and because of the speed of the wind the height of the waves are decided. वेव्स की हाइट डिसाइड होती है हवा की स्पीड से। अगर हवा की स्पीड ज़्यादा है तो वेव ज़्यादा उठेगी, हवा की स्पीड कम है तो वेव कम उठेगी। तो दैट वाज सरप्राइजिंग मैटर, द वेव्स वर सरप्राइजिंग मैटर, ये बहुत ही सरप्राइज करने वाली थी। एंड व्हाट वाज द हाइट ऑफ द वेव्स दैट वाज राइजिंग बिकॉज ऑफ द गेल, दैट वाज 15 मीटर्स, 15 मीटर ऊंचा, 15 मीटर, 15 मीटर्स हाई। अब देखिए समुद्र का वेव 15 मीटर ऊंचा उठ रहा है, तो किस तरह की बात आ रही है सामने। एज हाई एज आवर मेन मास्ट। अब मेन मास्ट का क्या मतलब है, मेन मास्ट का मतलब यहाँ पे ये है कि जस्ट ए मिनट प्लीज़ देखिए,
अब मान लीजिए ये आपका शिप है, ठीक है, ये शिप है आपका। अब मेन मास्ट, अब यहाँ जैसे अब ये शिप पे जो डेक्स बने होते हैं, ये डेक्स बने होते हैं मेन मास्ट, सबसे अपर पोर्शन, जो शिप का सबसे अपर पोर्शन होता है, मास्ट इसको कहते हैं, मास्ट, सबसे ऊपर वाला हिस्सा मेन मास्ट। तो अब इससे मतलब ये तो पानी में है, अब ये 15 मीटर, वेव्स क्या है, हाइट ऑफ द वेव इज मोर देन 15 मीटर है, 15 मीटर से ऊंचा, मतलब अब ये मास्ट जो है 15 मीटर से नीचे है। नाउ जस्ट टू सी, तो दैट वाज द अलार्मिंग, ऑफ कोर्स इट इज़ एन अलार्मिंग थिंग। अब कोई भी देखे भाई इतना ऊंचा उठ रहा है लहर कि हमारे शिप से भी ज़्यादा ऊंचा लहर है, तो फिर अब हम कैसे क्या कर सकते हैं। तो एक सरप्राइजिंग मैटर है, परेशानी का कारण है, आदमी को डर लगेगा, he will feel a disappointment also, afraid he will. December 25 found us 3,500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन। केप टाउन से कितनी दूर चले गए ऑन 25 से दिसंबर में, ऐसे 3,500 किलोमीटर ईस्ट निकले। कहाँ से? केप टाउन से। केप टाउन से इधर वेस्ट ईस्ट में हैं, ईस्ट कितना किलोमीटर निकल गए, 3,500 किलोमीटर ईस्ट आ गए, ठीक है। केप टाउन से 3,500 किलोमीटर और पूरब गए अभी, ठीक है, जा रहे हैं ईस्ट केप टाउन। डिस्पाइट एट्रोसियस वेदर, एट्रोसियस का मतलब क्रूएल होता है, एट्रोसियस का मतलब क्रूएल, ATROCIOUS, क्रूएल, CRUEL, क्रूएल, एट्रोसियस वेदर, क्रूएल वेदर। अब वेदर जो है क्रूएल था। डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट का मतलब क्या है, इन स्पाइट ऑफ। एक बात ध्यान दीजिएगा, इसका यूज आता है डिस्पाइट। डिस्पाइट डज नॉट फॉलो प्रीपोजिशन ऑफ, लेकिन उसका मीनिंग है इंस्पाइट, इंस्पाइट ऑफ को फॉलो करता है, हैं। इंस्पाइट मन, इंस्पाइट ऑफ माने के बावजूद, के अलावा, के अतिरिक्त। डिस्पाइट माने वही चीज़ है कि के अलावा, के अतिरिक्त, के बावजूद। डिस्पाइट एट्रोसियस वेदर वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद अ क्रिसमस ट्री। तो दे हैव सेलिब्रेटेड, they were Christian, therefore they have celebrated their Christmas besides atrocious weather। वेदर जो है ख़राब था, क्रूएल था, इसके बावजूद भी उन्होंने अपना क्रिसमस का पेड़ लगाया, यानी कि उसमें शिप में लोग मिल करके क्रिसमस का सेलिब्रेशन किए, हैं। न्यू ईयर्स डे, ये क्या था, न्यू ईयर्स डे था। सा नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर, लेकिन न्यू ईयर होने के बावजूद भी दे कुड नोटिस दैट देयर वाज नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर। वेदर में यानी जो मौसम था, क्रूएल था, एट्रोसियस था, वाज नॉट अ बिट बेंट डाउन और नॉर्मल। ये नॉर्मल नहीं हुआ, ये कम नहीं हुआ, कमज़ोर नहीं पड़ा, ठीक है। ये नए साल होने के बावजूद भी ये कुछ कमज़ोर नहीं पड़ा, ये स्टार्म उसी तरीके से चलता रहा। आगे चलते हैं। Now, but we reasoned that it had no change to change soon. Sorry. But we reasoned that it had to change soon. But we thought, we estimated, we guessed, हमने अनुमान लगाया that it will change soon. ये रफ वेदर जो है चेंज हो जाएगा, जल्दी ही बदल जाएगा। लेकिन होता क्या है, एंड इट डिड चेंज, येस ऑफ कोर्स इट हैड बीन चेंज्ड, ये बदला, ये बदल गया, मौसम बदल गया, ठीक है, मौसम तो बदल गया, लेकिन क्या हुआ, फॉर द वर्स,
हैं, was, worst, worst, बैड, वर्ज, वर्स्ट, सॉरी, बैड, वर्ज, वर्स्ट, ये कंपैरेटिव डिग्री का है। बैड, वर्ज, वर्स्ट, बैड जो है पॉजिटिव है, पॉजिटिव डिग्री, वर्ज कंपैरेटिव डिग्री है, और वर्स्ट सुपरलेटिव डिग्री है, यानी कि बैड से वर्ज हो गया और ख़राब हो गया, ठीक है, और ख़राब हो गया। तो आगे क्या हुआ, वर्ड्स, एट dawn on January 2, January 2nd, at dawn, dawn and dusk, DAW and dawn, इसका अपोजिट होता है DUSK, डस्क। तो dawn को मॉर्निंग कहते हैं, ये मॉर्निंग होता है, और ये इवनिंग होता है। डस्क इवनिंग को सिंबलाइज करता है, dawn मॉर्निंग को सिंबलाइज करता है, मतलब dawn एंड डस्क, ठीक है। तो एट dawn on January 2, the waves were gigantic, GANTIC, gigantic, gigantic, GANTIC, gigantic हो गया। तो gigantic का मतलब क्या है, gigantic का मतलब वेरी ह्यूज, वेरी ह्यूज, बहुत विशाल हो गया। कौन सी, वेव, इसीलिए वो बैड से वर्ज हो गया था। मौसम बदला तो जरूर, 25 दिसंबर के बाद 2 जनवरी तक, 2 जनवरी को स्पेशली द वेदर वाज चेंज्ड, बट इट हैज़ बीन चेंज्ड फ्रॉम बैड टू वर्ज, and why it is was, because the waves were became gigantic। gigantic का मतलब कि वेव्स हम जानते हैं 15 मीटर से भी ज़्यादा ऊंचा हो गया, इसलिए gigantic हो गया, बहुत विशाल हो गया। तो ये gigantic हो गया, were gigantic। we were sailing with only a storm zib and were still making at knot। तो एक नाट में, हाँ, ये नाट जो होता है वो डिस्टेंस मेजरिंग होता है, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस होता है। नाट, नाट का क्या है, KNOT, नाट, है मेजरमेंट ऑफ मेजरमेंट ऑफ सी डिस्टेंस, मेजरमेंट ऑफ सी डिस्टेंस, सी में समुद्र की दूरी को नापने के लिए ये नाट बनाया गया है। तो ये कितना था, एक नाट में कितनी डिस्टेंस होती है, कितनी दूरी हो, लगभग 6080 फीट होती है। एक नाट में इतनी दूरी होती है। 1 knot is equal to एक नाट में 6080 फीट के लगभग की दूरी होती है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो ये किस नाट से चल रहा था, तो 8 नाट, ये शिप की स्पीड क्या थी, 8 नाट पर आवर, 1 घंटे में 8 नाट की दूरी कवर करता था। अब 8 में इसका 6080 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्लियर हो जाएगा कि कितना फीट वो 1 घंटे में जा रही थी, ठीक है। बोलिए स्टार्म जिब। अब स्टार्म जिब क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टार्म जिब, एक मिनट आप थोड़ा सही से रब कर लें। जिब में, जिब को मैंने बताया था कि ये पाल होता है। जैसे पहले के समय में जब लोग शिप लेकर के चलते थे
शिप लेकर के चलते थे, तो शिप पे लोग ये बांध देते थे टेंट, कैनवस, ठीक है, कैनवस लगा देते थे। कैनवस का मतलब क्या होता है, ये जिब है, जिब, JIB, जिब, ये जिब है पूरा, ये कपड़े का बना होता है। ये कपड़े का बना होता है, जैसे टेंट टाइप होता है, ये मोटा कपड़ा होता है। जैसे आप टेंट कहीं लगाते हैं तो वो कपड़े से कैन वो कर देते हैं, तो एक गुफा टाइप बन जाता है, लोग रहते हैं। ये खास करके PSC कैंप जहाँ लगता है तो उसमें वो इस तरह से टेंट लगा लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये टेंट रहता है। टेंट क्या रहता है कि दैट मेक द शिप ईजी टू रन इन द डायरेक्शन ऑफ द विंड वेयर इट इज़ ब्लोइंग, इन विच इट इज़ ब्लोइंग। हवा जैसे मान लीजिए कि शिप को हमको इधर लेके जाना है, ईस्ट में लेके जाना है, ठीक है। तो विंड जो है इधर का बह रहा है, तो हम ये मास्ट लगा देते हैं, सॉरी ये जिब लगा देते हैं। इससे क्या होता है कि वो एयर प्रेशर को होल्ड करता है, और इसके प्रेशर की वजह से जब एयर इस पर पुश करती है तो स्पीड ऑफ द शिप जो है एक्सीलरेट होती है और तेज़ होती है, ठीक है। तो इसने क्या किया कि जब देखा कि एयर तेज़ चल रही है तो इसने क्या किया कि स्टॉर्म जिब को इसने हटा दिया, हैं, सेलिंग विथ ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जिब। ये तीन कोने तीन पाए की तरफ में होता है, जैसे 1 2 3, यानी बीच में मुंह फोल्ड होता है और साइड में ओपन होता है। जैसे ये मतलब जैसे ये आपका निशान होता है, ठीक है। तो ये निशान है, ये एयर को लेती है और यहाँ एयर का प्रेशर होता है, एयर प्रेशर इधर इस पे आता है, एक्सर्ट करता है और इससे ये एक्सीलरेट करती है, मतलब ये शिप एक्सीलरेट करती है, ठीक है। इसको आप थोड़ा समझते रहिएगा कि हाँ। अब उसको क्या किया, स्टिल मेकिंग 8 knots, sailing with only a small storm jib, and were still making 8 knots as the ship rose to the top of each wave। अब देखिए, अब जैसे अब ये वेव है, अब इस पर जब वो चलती थी या आती थी, जब शिप इस पर आती थी, जब शिप इस पर आती थी, हाइट ऑफ द वेव पे आती थी, तो क्या होता था, व्हाट हैपेंस। तो एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव वी कुड सी क्या, एनॉर्मस इंडलेस सी, एनॉर्मस इंडलेस, वेरी लार्ज, कहीं ख़त्म न होने वाला समुद्र ही समुद्र दिखाई देता। जैसे आप 10 स्टोरी बिल्डिंग पे आप चले जाएं तो इस पूरे गोरखपुर की एरिया बहुत दूर तक दिखाई देगी, आपको कवर करेगी, आप उसको कवर कर लेंगे, ठीक है। तो बहुत दूर तक दिखाई देगी उस तरह से। तो क्या है, एनार्मस इंडलेस, एनार्मस, एनार्मस वही जाइगेंटिक, लार्ज, ठीक। सी रोलिंग टूवर्ड्स अस, जैसे वेव्स चलता है तो ये नहीं मालूम होता है कि किधर जा रहा है, वो आगे बढ़ रहा है कि इनकी तरफ आ रहा है। तो रोलिंग टूवर्ड्स अस, जैसे मन लग रहा था अरे वेव तो चल ही रहा है, अब आप समझ लीजिए कि इधर से इधर आ रहा है या इधर से इधर जा रहा है। शिप किधर जा रही है, शिप मान लीजिए इधर जा रही है, ये वेव से इधर ही जा रहे हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं पता चलता है कि वो मेरे से दूर जा रहा है, मेरे तरफ आ रहा है, ऐसा नहीं लगता है। वेव तो हमेशा उठता रहता है, ठीक है, उसका कोई डायरेक्शन नहीं दिखता है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे अब इनके पास भी वेव है और आगे भी वेव ही वेव है, तो वो लग रहा है कि हमारे तरफ आ रहा है, रोलिंग टुवर्ड्स अस एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड। देखिए जैसे फ्रिक्शन होता है, हाँ, ओशन के सरफेस पर क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, तो उस फ्रिक्शन की वजह से क्या है, रोलिंग टुवर्ड्स अस एंड स्क्रीमिंग, दैट इज साउंड, harsh sound was coming to us,
हमारे कानों को एकदम बिल्कुल परेशान कर देने वाली आवाज़ आती थी। ठीक, जब वो हवा समुद्र के सरफेस पे चलती है तो बहुत तेज़ की आवाज़, घड़ 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 हर 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 की आवाज़ सुनाई देती है। तो enormous sea rolling towards us and the screaming of the wind and spray was painful to the ears, painful to the ears, screaming, हैं, जब स्क्रीमिंग वेव्स इससे भी लड़ता था तो यहाँ से भी पानी की बौछारें निकलती थी। ऐसे जब वेव्स इस पर ब्रेक करता था, लगता था तो पानी की बौछारें ऊपर की तरफ निकलती थी। ठीक है, ऐसा होता था। स्क्रीमिंग ऑफ द विंड एंड स्प्रे, वो स्प्रे होता था, जैसे पानी की जब जब वो वेव टूटते थे इनके पास से तो वो पानी की बौछार ऊपर तरफ निकलती थी। पेनफुल टू द ईयर, टू स्लो द बोट डाउन, टू स्लो द स्पीड ऑफ द बोट डाउन, व्हाट ही डिड, वी ड्रॉप्ड द स्टॉर्म जिप, तो स्टॉर्म जिप को उतार दिए, ये उतार दिए, स्टॉर्म जिप को हटा दिए। अब यहाँ से स्टॉर्म जिप हट गया। ठीक है, जीभ हटा दिए। अब जब जीभ हटा दिए तो क्या हो गया कि अब एयर का प्रेशर इस पर आएगा नहीं बोट पे, बोट एक्सीलरेट, बस केवल सिंपली एक्सीलरेट करेगी, जो हमारा मीन्स है एक्सीलरेशन का, उसी आधार पर वो चलेगी। अब एयर प्रेशर अब इस पर बहुत कम आएगा क्योंकि अब स्टॉर्म जीभ हट गया है। नाउ टू स्लो द बोट डाउन वी ड्रॉप्ड, पुल्ड डाउन, ड्रॉप्ड का मतलब क्या है, पुल्ड डाउन, उतार दिया, द स्टॉर्म जिप एंड लैस अ हैवी मूरिंग रोप, मूरिंग रोप बहुत मोटी तगड़ी मजबूत रस्सी से इन्होंने बांधा, क्या, इन ए लूप, लूप क्या होता है, प्रोजेक्टेड पोर्शन होता है। जैसे मान लीजिए कि ये लूप है, यहाँ कहीं भी जहाँ भी खूंटे डंटे होते हैं उसमें निकले होते हैं, तो उस लूप से लगा करके कहाँ तक बांधा, dropped the storm jib and lash a heavy mooring rope in a loop across the stern, माने पीछे के भाग से, across the stern, यहाँ से यहाँ तक का वो बांध दिए, जहाँ भी जीभ है उसको बांध दिए और वे सारे चीज़ों को बांध दिए ताकि ये उड़ने न पाए। स्टॉर्म तेज़ था, उड़ जाता, इसलिए उड़ने न पाए, अतः उन्होंने फिट करके बांध कर रख दिया, मतलब उसी में नाव में ही बांध दिया, पूरा लपेट दिया। जैसे मान लीजिए अभी पोल पे है, पोल पर ही वहीं लपेट दिया, मान लीजिए ये है तो वहीं लपेट दिया और इसको बांध दिया, किससे, तो स्टर्न से, आगे या पीछे, पीछे वाले हिस्से से बांध दिया इसको, रस्सी से, मजबूत रस्सी से। तो अब क्या हुआ, देन वी डबल लैस, एक बार ही नहीं बांधे, डबल बांध दिए, डबल लैस की, लैस्ड एवरीथिंग, सब कुछ दो बार में बांधे, मैंने दोहरा के बांधे। एक बार से बांधने से काम नहीं महसूस किया तो उन्होंने कहा कि दो बार बांधेंगे ताकि ये कोई चीज़ उड़ने ना पाए, कोई चीज़ बिखरने ना पाए। नाउ वेंट थ्रू आवर लाइफ राफ्ट ड्रिल, लाइफ राफ्ट ड्रिल क्या होता है, एक जिसे जीवन रक्षक नौकाएं होती हैं, छोटी छोटी नाव होती हैं जिसमें एयर टाइट होता है, हवा भरी हुई नाव होती है जो डूबती नहीं है। कभी कभी आपने लाइव्स ऑफ पिपली देखा होगा, लाइव्स ऑफ पिपली देखा होगा, माझी देखा होगा, तो माझी में तो कोई चीज़ नहीं, लाइव्स ऑफ पिपली में आपको वो दिखाई देगा कि जैसे समुद्र में एक तूफ़ान आती है और वो उसकी नाव बिखर जाती है और छोटी से नाव पर लाइफ राफ्ट ड्रिल कहते हैं, उस पर वो सवार हो जाता है और निकलता रहता है। ठीक है, तो अटैच्ड लाइफ लाइन्स डॉन्ड ऑयल स्किन, ऑयल स्किन लगाए, लाइफ लाइन डॉन्ड स्किन, माने एक तरह से वो ऑयल लगाए जो समुद्र के पानी को शरीर से जब वो कनेक्ट होता है, काफ़ी देर तक कनेक्शन बना रहता है तो वो आदमी को नुकसान कर देता है। जो जैसे अब हम लोग यहाँ समुद्र में रहने वाले तो हैं नहीं, तो हमारे रहन सहन को दिक्कत करता है, परेशान करता है, स्किन के लिए हार्मफुल होता है। काफ़ी देर तक हम समुद्र के पानी में नहीं रह सकते हैं।
तो इसलिए उन्होंने ऐसा ऑयल लगाया जो स्किन को प्रोटेक्ट करता है, दैट प्रोटेक्ट द स्किन फ्रॉम सी वाटर। उसके बाद क्या किया, एंड लाइफ जैकेट, लाइफ जैकेट भी पहना, जिससे उसमें भी हवा टाइट रहता है कि पानी उसमें वाटर प्रूफ रहता है, उसमें नहीं घुसता है, और आदमी मान लीजिए नाव भी ख़राब हो जाए तो उस वक्त वो बच सकता है, अपने बचने का उपाय कर सकता है। ठीक है, तो देखते हैं इसको, चलिए आगे चलते हैं। जैकेट एंड वेटेड, और ये सब निकाल करके नाव को भी निकाल के रखे हैं, और अपना कपड़ा भी, वो जैकेट भी पहन लिए हैं, ऑयल भी लगा लिए हैं, सब कुछ सभी लोगों ने कर लिया, रेडी हो गए हैं कि किसी भी चैलेंज को फेस करने के लिए, किसी भी प्रॉब्लम को फेस करने के लिए दे हैव बिकम वेरी रेडी टू फेस द चैलेंज ऑफ द सी स्टार्म, कि अगर इस सी में इस तरह का स्टार्म है और अगर मान लीजिए मेरी नाव डैमेज होती है, वेव आकर अगर टूटता है, तो हाउ विल वी बी सेव्ड फ्रॉम द सी, मतलब सी में, समुद्र में कैसे हम ये बच सकते हैं डूबने से, मरने से। ठीक है, द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर, इम्पेंडिंग मीन्स फॉलिंग, इम्पेंडिंग, इम्पेंडिंग, हैंगिंग ओवरहेड, हैंगिंग ओवरहेड, जो हमारे सर पर मंडरा रहा था, डिजास्टर, डिजास्टर मीन्स डिफ़िकल्टीज, नेचुरल डिजास्टर्स आपने पढ़ते हो, द डिफ़िकल्ट सिचुएशन, आपदा, प्राकृतिक आपदा, तो जो आपदा हमारे सर पे थी उससे बचने के लिए अब हम लोग ये केम एट अबाउट 6 PM, और वह वास्तविक प्राकृतिक आपदा 6 बजे शाम को आई, 6 PM, 6 बजे शाम को आई। क्या, विथ एन ओमिनस साइलेंस, थ्रीटेनिंग, ओमिनस का मतलब क्या है, थ्रीटेनिंग, ओमिनस, OMINUOUS, ओमिनस, कहाँ गया, NOUS, ओमिनस है, ओमिनस, थ्रीटेनिंग, THREA, थ्रीटेनिंग, TATNING, थ्रीटेनिंग, ओमिनस, जैसे अशुभ, बैड ओमेन आता है, अशुभ संकेत सूचक होता है, तो ओमिनस साइलेंस, एकदम थ्रीटेनिंग साइलेंस, एकदम भयभीत, डर गए हैं एकदम, कंप्लीटली डर गए हैं, ओमिनस साइलेंस होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं, चलिए, द विंड ड्रॉप्ड, अब विंड बंद, चलना का, विंड का बहना बंद हो गया, विंड ड्रॉप्ड, स्टिल हो गया, क्वाइट साइलेंट हो गया। अब क्या हो गया, विंड ड्रॉप्ड एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रीव डार्क, और अचानक स्काई डार्क हो गया। अब देखिए, जैसे आप पहले देखते हैं कि हवा बिल्कुल बंद हो जाती है और बड़ी तेज़ से बारिश आने लगती है, इसका भी अनुभव आपको हुआ होगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि पहले आपको आकाश में बादल दिखाई देता है, डार्कनेस दिखाई देता है, उसके बाद आंधी तूफान आ जाती है, बड़ी उमस हो रही है लेकिन अचानक बारिश होने लगती है, इस तरह से। तो ओमिनस साइलेंस हो गया, यानी हवा का बहना बंद हो गया, और उसके बाद अचानक जो है स्काई कैसे दिख रही है, डार्क स्काई हैज़ बीन नोटिस्ड, तो डार्क स्काई दिखाई दे रही है, ओमिनस साइलेंस, ग्रीव डार्क, तो अब डार्क हो गया, अब चारों तरफ अंधकार छा गया वहाँ। The wind dropped and the sky immediately grew dark. Then came a growing roar. बड़ी तेज की आवाज़, ग्रोइंग रोर, रोर जैसे सिंह के दहाड़ की आवाज़, तो क्या सिंह की दहाड़, और तेज आवाज़ सुनाई दे रहा है, ग्रोइंग रोर। ठीक, देन केम अ ग्रोइंग रोर एंड एन एनार्मस क्लाउड टवर्ड एफ्ट ऑफ द शिप। हाँ, क्या आया,
तो एनॉर्मस क्लाउड, एनॉर्मस मतलब वेरी बिग, जाइगेंटिक, बहुत बड़ा क्लाउड। तो आकाश में बहुत बड़ा क्लाउड, ऐसे अंधकार चुप छा गया, चारों तरफ अंधकार हो गया, तो ऐसा क्लाउड दिखाई, ऐसा लगा कि वो क्लाउड बादल है, हाँ? एकदम बिल्कुल काला। कहाँ आया? टावर्ड आफ्ट, एकदम प्रायः टावर्ड माने गिर रहा था, जैसे कि हमारे शिप पे वो काला बादल गिर रहा था, ठीक, डार्क शिप विथ हॉरर। ओ व्हाट अ प्रॉब्लम, व्हाट अ फियर इट वाज द ग्रेट प्रॉब्लम, ग्रेट फियर है। क्या हुआ? विथ हॉरर आई रियलाइज्ड दैट इट वाज नॉट अ क्लाउड। तो फिर क्या था? ही थॉट दैट इट इज नॉट अ क्लाउड, ये क्लाउड नहीं है, तो फिर है क्या? बट अ वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन। ये क्लाउड नहीं था दोस्तों, ये तो बहुत बड़ा वेव था, जिसको जिंदगी में उन्होंने कभी नहीं देखा था, कभी नहीं ऐसा सुना था। हाँ, I realized, I thought that it was, I noticed that it was not a cloud, but a wave like no other I had ever seen। मैंने अपने पूरी जिंदगी में नहीं देखा था, एवर सीन, कभी देखा ही नहीं था, ऐसा था। आई appeared perfectly vertical, it appeared perfectly vertical, एकदम वर्टिकल, सीधे सीधे वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल नहीं, वर्टिकल। हाँ गिरा, appeared perfectly vertical at almost twice the height of the other waves। अरे बहुत ऊंचा, हाइट ऑफ द अदर वेव्स, दूसरे वेव्स जितने थे जो शिप से ऊंचे दिखाई दे रहे थे, उससे भी काफ़ी ऊंचा, और सीधे सीधे गिरा शिप पे, वर्टिकली गिरा शिप पे, इतना बड़ा, almost twice the height of the weather waves with a frightful breaking क्रेस्ट को यानी मास्ट को एकदम बिल्कुल बर्बाद कर दिया, तोड़ दिया। नाउ माय डियर, आई थिंक टुडे वट एवर यू हैव रेड, वट एवर यू हैव स्टडीड, it is sufficient for you today, and in the next day, next video, I'll be with you with the deep explanation of this chapter. Up to that, thank you, good day, bye bye.